So at a stretch, we have to deal with 7 endocrine glands, which together, though they are anatomically not associated with each other, but still they work together, as well as you could say they together coordinate the complete body with nervous system. So today, basically, I'm going to cover pineal, followed by hypothalamus. Thereafter, I will move to thyroid and parathyroid, followed by thymus. Out of those 7, most probably in next 2 hours, we are going to cover these 5 endocrine organized glands. So to begin with, pineal gland. Now, first of all, if we consider the human nervous system, the representative of CNS, the brain, and followed by spinal cord, the brain itself being differentiated into forebrain, midbrain, and hindbrain. So the forebrain part is characterized by 3 parts: the solid bilobed structure, olfactory lobe, and the most of the part represented by the higher center called cerebrum. But today we are concerned with the third part of forebrain, and that is diencephalon. Because to begin with the gland, सारे ऑर्गेनाइज ग्लैंड पढ़ने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा. We will begin with its location, morphology, histology, where we will come across a particular cell type whose presence actually offer endocrine nature to that gland. Then we will look forward with the types of hormones the cell produce, and individually which hormone perform what function. If not, then accordingly they generate disorders, hormonal imbalance, either underproduction or overproduction category, right? So to begin with the location, as mentioned in NCERT, pineal is located on the dorsal side of forebrain. Actually, forebrain को dorsal और ventral region में माने तो somewhere over here diencephalon part तो forebrain area में है, लेकिन forebrain area में कहाँ? It is the diencephalon. Now I am going to make an arbitrary presentation. Suppose we consider this spherical structure to be diencephalon. Now its lower end, the roof, has a stalk-like extension holding the master gland pituitary, and the complete diencephalon itself is made up of 3 parts. Epithalamus, thalamus, and hypothalamus. Now the associated question of the topic is the जो diencephalon है, before I peep into pineal gland which is located above the top of diencephalon, yani roof of diencephalon epithalamus. What is epithalamus itself? Now epithalamus is the only part of complete brain. Epithalamus area, the roof,
The roof of Dancephalon epithalamus is the only part of the complete brain which is non-nervous. Now, this is the only point which you have to recognize regarding epithalamus. Non-nervous. What does it mean? कि इस एरिया में सिर्फ न्यूरोग्लियल सेल्स मौजूद है. क्या मौजूद है? न्यूरॉन्स आर एब्सेंट. क्या एब्सेंट है? न्यूरॉन्स. अब ऐसा क्यों है और उसकी वजह इसका भी कुछ कारण होगा. ये आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाते हुए बता दिया जाएगा. आज आपको ये याद रखना है कि एपिथैलेमस द नॉन नर्वस पार्ट ऑफ ब्रेन. कल ऑप्शंस बनेगा, द आंसर विल बी एपिथैलेमस, है ना. दिस जीके बेस्ड क्वेश्चन और सीधा सीधा याद. रीजनिंग पार्ट नर्वस सिस्टम में बताया जाएगा क्या कारण है इसका. ओनली कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस टिश्यू कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स यहां मौजूद होते हैं. नन ऑफ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, निदर माइलिनेटेड नॉर नॉन माइलिनेटेड. ना ग्रे मैटर है ना व्हाइट मैटर है यहां पर. नाउ कम टू थैलेमस. थैलेमस से रिलेटेड 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं. उसमें आज एक स्टेटमेंट में दे रहा हूं. व्हाट इज थैलेमस? इट इज बेटर ऑल टुगेदर नोन एज. पूरे ब्रेन का ये एक गेटवे है. क्या है? गेटवे. रादर आई शुड यूज द वर्ड रिले सेंटर. It is the relay center of nervous system और gateway. गेटवे शब्द हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं लिटरली? कि सपोज कोई कंपाउंड है, कोई एक ऐसा एरिया है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद है, देयर इज नो एंट्री. अगर एंटर करना है उस गिवन रीजन में तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया से एंट्री करना पड़ेगा और एग्जिट करना पड़ेगा. दैट एरिया ऑफ द रीजन इज कॉल्ड गेटवे. तो वैसे ही बॉडी के जितने भी सेंसेस हैं जो अंदर से चारों तरफ से लोअर एंड गर्दन से नीचे जितने भी सेंसेशंस ब्रेन के हायर सेंटर की तरफ जाएंगे जिससे कि यहां डिसीजंस लिया जा सके और फिर वो अकॉर्डिंगली फिर वापस इसी के थ्रू भेजेंगे. तो दैट्स द जंक्शन विच हैज टू क्रॉस. जितने भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट है किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो पूरे बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व्स के साथ पेरिफेरी पूरे शरीर के चारों तरफ कांटेक्ट बनाते हैं. ठीक है ना? आ रही मेरी बात समझ में? तो उनको यहीं से गुजरना पड़ेगा. दे कांट क्रॉस एनीवेयर एल्स. यहीं से गुजरेंगे और ये डिसाइड करेगा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ डिफरेंट sensations, hence called relay center, gateway of brain, thalamus. वो जब डिसाइड करेगा तभी ब्रेन तक पहुंच पाएगा. अगर वही वहां पर रिजेक्ट कर दे तो हायर सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा. अब इस तरह की एक्टिविटी की डे टू डे लाइफ में क्यों जरूरत है, क्या है, वी विल लुक फॉरवर्ड विद नर्वस सिस्टम. फाइनली हाइपोथैलेमस. Hypothalamus, the floor of Dancephalon. Now it is made up of, first of all, it is a part of nervous system primarily, and since part of nervous system, definitely it must be made up of nervous tissue. यहाँ पूरा nervous tissue होना चाहिए. So hypothalamus is histologically made up of gray matter. नर्वस टिश्यू दो तरह के होते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. ग्रे मैटर सिंपली मींस कि ओवर हियर जो न्यूरॉन्स पूरा यहां ग्रुप मौजूद होते हैं, यस डेफिनेटली दे आर ऑल नॉन माइलिनेटेड. ऑल rest. What hypothalamus do as an commander of endocrine gland? Commander gland of endocrine system. इसको हम थोड़ी देर बाद साबित करेंगे क्योंकि अभी स्टार्टअप पीनियल से है. कमांडर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. फाइन. Now come to the next part, epithalamus. Over there, the dorsal part contains a stalk-like extension, and this structure is so-called
pineal gland. Now, point to be noted, in human beings, only this gland is atrophied, है ना, before the age of puberty. Age of puberty. तो ये वर्ड मैंने इसलिए यहां यूज किया है क्योंकि एक कंफ्यूजन आता है, टेम्पररी ग्लैंड करके जब क्वेश्चन बनता है और ऑप्शन में पीनियल, थाइमस, कॉर्पस ल्यूशियम दिया रहता है विद एनी अदर ग्लैंड, तो हाउ टू डिसाइड? टेम्पररी शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है फिर जाता है फिर आना, टेम्पररी स्ट्रक्चर। और ये राइट बिगिनिंग जेनेटिकली डे 1 से रहता है, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड का हिस्सा है, दैट इज ओवरी, कॉर्पस ल्यूशियम। जबकि ये डे 1 से बनकर इसका प्योरली क्या काम है? टू प्रोड्यूस सम हार्मोन्स टिल सम स्टेज ऑफ लाइफ, एंड देयर आफ्टर इट गेट्स व्हाट? इनएक्टिव, है ना, रूडिमेंट्री हो जाता है, अपने आप को डिजेनरेट कर लेता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एट्रोपिड ग्लैंड, वन ऑफ द एट्रोपिड ग्लैंड। अगर सीधा सीधा पूछे अर्ली एज, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? बिफोर प्यूबर्टी विच ग्लैंड गेट एट्रोफिड, तब आंसर होगा पीनियल ग्लैंड। एंड एट द मिडिल एज, ऑन द एंड ऑफ प्यूबर्टी, ऑन द, यानी दैट इज समथिंग अराउंड 14 to 16, 15 to 17, वॉट एवर एज मेंशन, आफ्टर प्यूबर्टी, तब आंसर होगा थाइमस ग्लैंड, है ना। तो यही कुछ बेसिक बातें, बाकी तो रेस्ट आपको बुकलेट मिला हुआ है, उसमें सब लिखा है सिस्टमैटिकली। आई विल गो थ्रू आफ्टर नेक्स्ट हाफ एन आवर, मैं उसको ही रीडिंग करके पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन डायग्रामेटिकली पहले आप समझ चुके हैं। टुडे वी आर बिगिनिंग विद organized category which actually represents the endocrine system in an very unusual anatomic pattern. Unusual क्या है कि all the glands are associated with each other, but एकमात्र बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि एनाटॉमिकली एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, but still they are well coordinated. Now this prove their nature of work. जिस कोऑर्डिनेशन को वो बॉडी में ऑफर करने की बात कर रहे हैं, पहले वो खुद तो बिना एक दूसरे के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के, एक दूसरे के संपर्क में, कोऑर्डिनेशन में बनते हैं, एंड देन दे इम्पार्ट, दे रिले दैट कोऑर्डिनेशन असिस्टेंस टू द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज नर्वस सिस्टम। बट आज हम इस बात को यहां एस्टेब्लिश करेंगे कैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके एक सिंक्रोनाइज्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो बिगिन विद, सबसे पहले मैंने पीनियल हेड रीजन, लोकेशन, है ना, बॉडी में हेड रीजन, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन का डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड भी किस पर लोकेटेड है? ओवर द टॉप ऑफ डायंसिफ्लॉन। लिटरेचर लिखने की जरूरत नहीं, देख देख के ये सब याद हो जाना चाहिए। एंड टॉप ऑफ द डायंसिफ्लॉन, दैट इज द रूफ कॉल्ड एपिथैलेमस, उससे स्टॉक जैसा ये स्ट्रक्चर रहता है। और बाय बर्थ ह्यूमन बींग्स के लिए, रेस्ट सभी एनिमल्स में ये rest in all lower vertebrates till other mammals, this gland, है ना, टिल अदर मैमल्स, यानी एक्सक्लूडिंग ह्यूमन, यहां लिख सकते थे, मतलब अंडरस्टूड है क्योंकि मैंने ओनली पहले ही मेंशन कर दिया था, यहां पर ह्यूमन भी मैमल्स से, वर्टिब्रेट्स से। तो लोअर यानी मछलियों से लेकर पूरे मैमल्स तक, एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, दिस ग्लैंड, है ना, इज एक्ट एज रेस्ट इन ऑल लोअर वर्टिब्रेट्स टिल अदर मैमल्स। दिस ग्लैंड एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल, एक ही बात को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। रादर कॉल्ड थर्ड आई, अभी हम साबित करेंगे। पहले तो ये स्टेटमेंट्स आर ऑल गिवन करेक्ट। थर्ड आई
to maintain the sleep awake cycle, better called biocircadian cycle. अब जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं उसको साबित करूंगा इसकी हिस्टोलॉजी बताने के बाद कि this gland stimulate the gonads in some, है ना, stimulate the gonads in some animals, whereas, है ना, exception, क्योंकि अभी तक आप जानते थे कि ये तो सिर्फ जिम्मेदार है किस चीज के लिए, रोकने के लिए, इनहिबिटरी, लेकिन दोनों चीज करता है. These glands stimulate the gonads in some animals, whereas inhibit the function of gonads in some animals. कहीं स्टिमुलेट होता है और कुछ में इनहिबिट होता है. तो on the basis of reproductive behavior where season is taken as a factor, animals are of two types. Animal kingdom में animals कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं. Where we conduct and consider reproductive behavior associated with season. Now the question is, अगर वो season से connected बात है, animals are of two types, seasonal breeder and non-seasonal. तो नॉन सीजनल ब्रीडर्स पूरे एनिमल किंगडम में कौन सा ग्रुप होते हैं? प्राइमेट्स. कौन होते हैं? बाकी सब नॉन प्राइमेट्स एंड रेस्ट लोअर जितने भी है, ऑल आर सीजनल ब्रीडर. नेचर ने सबको एक आर स्पीसीज की तरह जो है बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है. ऑल द मेंबर्स आर बायोलॉजिकली व्हाट स्पीसीज? आर स्पीसीज. बट एनवायरमेंट का सामना करते करते 99% स्पीसीज क्या बन जाते हैं? के स्पीसीज. क्या बन जाते हैं? ये सिर्फ स्टेटमेंट अभी सुनते जाइए, सब साबित हो जाएगा धीरे धीरे. तो यही सब बातों का रिलेशन कैसे इस फिनोमेना के साथ है, ध्यान दीजिएगा. तो टुडे वी हैव स्टार्टेड विद पीनियल, जिसमें सबसे पहले लोकेशन कंफर्म किया, डायग्रामेटिकली उसको प्रूव किया और जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए. बट बिफोर वी मूव अहेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, इट्स पोजीशन अमंग एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स से बेहतर एंडोक्राइन सिस्टम किसी का है नहीं. तो अमंग वर्टिब्रेट्स एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, बाकी सब में ये ग्लैंड थ्रू आउट लाइफ रहता है. दैट्स द कंक्लूजन. क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग में इस ग्लैंड को एक कुछ हद तक समय तक ही एक्टिव रहना है, एंड देयर आफ्टर इट गेट्स डीजेनरेटेड. दैट इज कॉल्ड एट्रोपिड कंडीशन बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बिफोर द एज ऑफ. एंड इफ इट इज सो, देन this gland in human get atrophied, inactivated by the age of 8 years and above by deposition of calcium salts. Thereby becoming ब्रेन सैंड, या फिर इसे पीनियल सैंड भी कहते हैं. Which gland has been termed as brain sand? ठीक है ना, आंसर होगा पीनियल ग्लैंड, है ना. तो एक्सरे में एक ओपेक स्ट्रक्चर की तरह आएगा ये, एनीथिंग एज अबव 10, है ना. तो सिटी स्कैन करेंगे, एक बिल्कुल ऐसा गांठ जैसा, नोट जैसा ओपेक स्ट्रक्चर की तरह इसका
डायग्राम आएगा, दैट्स इट्स द ब्रेन सैंड और पीनियल सैंड. नाउ histologically, ठीक है, histologically the gland contains modified cell type pinealocytes. These are the endocrine cells present inside the pineal and they respectively produce, ये बहुत क्रूशियल है. एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक ही हार्मोन दिया है, लेकिन जितने भी फंक्शंस लिखे हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए मेरे नोट्स में 4 हार्मोन के नाम लिखे हैं और वो चारों हार्मोन्स में से मेलाटोनिन अंडरलाइन करके एस्टेरिक साइन बना है. तो एज पर एनसीईआरटी याद तो कर लेंगे, लेकिन जितने भी फंक्शंस एनसीईआरटी में पीनियल ग्लैंड को लेके लिखा हुआ है, अगर आप बहुत ही नजदीक से उसको देखें और एक्सप्लेन करें, समझे, तो सम फंक्शंस आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन बॉडी and some functions are in reference to all other vertebrates excluding human. तो मैं उस तरह से डिफरेंशिएट करके अभी आपको लिस्ट बनवा दूंगा जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती ना करें. तो पीनियल ग्लैंड एक तो आप समझ लीजिए, इसलिए तो आज मैंने क्लास की स्टार्टअप किस स्टेटमेंट से किया कि जिस ग्लैंड को हम पढ़ने जा रहे हैं, अमंग ह्यूमन इट हैज टू गेट एट्रोपिड समथिंग एट द एज बिफोर प्यूबर्टी, और ऐसा होना ही जरूरी है क्योंकि दैट्स एन ट्रिगर, दैट्स अ ट्रिगर, हार्मोनल ट्रिगर फीडबैक, क्योंकि इसके इनएक्टिव होने पर जेनेटिकली प्लानिंग के चलते हुए सो कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स का बनना, सिग्निफिकेंटली रिलीज होना तय है, और तब जाके एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में सो कॉल्ड मेल और फीमेल, a boy or girl is going to enter into a phase of transition to move from childhood to adulthood. तो पॉइंट टू बी नोटेड, यानी मैंने अभी अभी टेक्निकली सोशल लेवल पे क्या वर्ड यूज किया, बॉय एंड गर्ल, बट द वेरी मोमेंट आफ्टर गोइंग थ्रू दोस फेस ऑफ ट्रांजिशन, उस बदलाव के एक दौर, उस पड़ाव से गुजरने के बाद बॉडी 3 तरह के जो ट्रांजिशंस एक्सपीरियंस करते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल. Finally, no more the body remains simply a boy or girl, it's rather genderhood, perfect genderhood हासिल करना, और उस परफेक्ट जेंडरहुड हासिल करने को ही हम बायोलॉजिकली कहते हैं डे टू डे लैंग्वेज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. क्या कहते हैं? A body with either sexual features being developed. Unisexuality among human beings are achieved by a phenomenal process altogether called sexual dimorphism. And it is brought by, sexual dimorphism itself is brought by some series of changes, and all those changes together medically in human lifespan is called pubertal changes. तो जिस जेंडरहुड के चलते हुए the boy turns into a manlyhood body and a female girl changes into womanhood, हिंदी में कह सकते हैं ना, स्त्रीत्व के गुण आ जाना, क्योंकि प्रेगनेंसी अचीव करने की प्रॉपर्टी, मदरहुड एग्जिबिट करने की एबिलिटी एंड सो ऑन. तो ये सब आने के लिए सबसे पहले इस ग्लैंड का इनएक्टिव होना जरूरी है, दैट व्हाट हैज बीन जेनेटिकली प्लान्ड बाय नेचर. तो पॉइंट टू बी नोटेड, अभी अभी आपके सामने जिस सीक्वेंस में ये पढ़ाया गया और रिलेटेड 2-3 बातें और पता चला, ये तो एसोसिएटेड बातें बता दी जो इस चैप्टर से लेना देना नहीं था. सिंस आई वाज एक्सप्लोरिंग डायंसिफ्लॉन जिसके खुद 3 हिस्से हैं, तो आज ही के आज आपको मैंने ये साबित नहीं किया कि क्यों नॉन नर्वस है, क्यों रिले सेंटर है, बट ऐसा कहते हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि खुद डायंसिफ्लॉन के 3 हिस्से हैं, उसमें से हाइपोथैलेमस इस चैप्टर का कंसर्न है क्योंकि बीइंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए भी काम करता है. लेकिन फिलहाल उस बात को बाद में एक्सप्लोर करेंगे. हाइपोथैलेमस हाउ कंट्रीब्यूट एंड गेट पार्टिसिपेटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम एज कमांडर ग्लैंड. विच ग्लैंड? तो ये सब देखने के बाद फाइनली वी पीप इनटू पीनियल, और जिस तरह से ये बातें सामने आई हैं, क्यों ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, थर्ड आई, स्लीप वेक साइकिल, बायो सर्केंडियन साइकिल साबित करते हैं. बट सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर लें कि दिस ग्लैंड इन ह्यूमन गेट एट्रोपिड, लेकिन एट्रोपिड होने से पहले 8-9 साल की उम्र तक सो कॉल्ड वो हार्मोन ग्लैंड क्या करता था, उसके पास क्या था, पिनियलोसाइट्स, और इन सेल्स से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड है कैटेगरी,
मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, AKTH और AGT। तो हार्मोन प्रोड्यूस, ठीक है, ये सीक्वेंस आपके सामने नाम है। सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अ रेज एंड एग्रेशन। एक उम्र का जो मतलब उस उम्र तक 8-9 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चों में किसी भी चीज को लेके एक रेज आना, एग्रेशन आना, उनमें जो एक अलग तरह से एनर्जी होती है, इट्स ड्यू टू द सेरोटोनिन रिलीज बाय दैट ग्लैंड। ठीक है ना, ऑल ओवर। अब एनसीईआरटी में क्या क्या इसके फंक्शंस लिखे हैं, दैट आई विल कोलैबोरेट विद द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड। फंक्शन, फंक्शंस, सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो तीन फंक्शंस हैं, ये जो तीन फंक्शंस हैं, ये ह्यूमन के लिए है, उसमें से फॉर ह्यूमन बीइंग। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, ये कौन सा हार्मोन है? एडिपो काइनेटिक ट्रॉपिक हार्मोन। बढ़ते हुए, है ना, चाइल्डहुड में बच्चे का जो बॉडी एक ऑल ओवर प्रोपोर्शनलिटी डेवलप होता है, ऑलरेडी बॉडी में सारे मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, लेकिन ये एडिशनली उसको प्रोवोक करता है, सपोर्ट करता है, खासकर बॉडी में। एडिपो नाम से समझ में आ रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। कौन सा मेटाबॉलिज्म? एनसीईआरटी में मेटाबॉलिज्म लिखा है। और उसकी वजह से शरीर में एक हिडन एनर्जी जो फ्लो करता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तभी तो बच्चे में आप देखेंगे उनमें जो स्फूर्ति, मतलब हिंदी कहते हैं ना, दे आर मोर एक्टिव, इधर उधर दौड़ा भागी ये चीज। और अगर ये उस समय ना दे, कुछ बच्चे डल होते हैं, शांत बैठे रहते हैं, ग्रोथ कम होता है, पतले दुबले। रीजन इज कि सो कॉल्ड हार्मोन AKTH एंड व्हाट इज द अदर हार्मोन, ये तो इसका मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर। AGT मींस एंटी गोनाडोट्रोफिन, एंटी मेलाटोनिन के साथ साथ ये हार्मोन साथ देता है सिनर्जिस्टिकली। इसका नाम ही है एंटी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जिस इनहिबिशन की बात अब से थोड़ी देर बाद मैं फंक्शन में करने जा रहा हूं, वो एक्चुअली ये और ये साथ मिलकर मेलाटोनिन अलोंग विथ AGT, एंटी गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रिलेशन है? पॉइंट टू बी नोटेड, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक टर्म यूज कर दिया है जस्ट टू गिव अ रेफरेंस। नोट, फीमेल के टर्म्स में कहा है, इन फीमेल बिगिनिंग ऑफ, है ना, बिगिनिंग ऑफ मेंसेस। पॉइंट टू बी नोटेड कि फीमेल्स में अगर हम बात करें ह्यूमन में, इन फीमेल बिगिनिंग ऑफ मेंसेस इज साइन ऑफ व्हाट? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जब तक ये हार्मोन इसके साथ एक्टिव रहेगा, मेंसेस स्टार्ट नहीं होगा, मिनार्की नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए तो लिख दिया, मतलब हाउ मेलाटोनिन, क्योंकि मिनार्की तो आएगा एट द एज ऑफ समथिंग 12 एंड अबव, 11th एंड अबव।
और जैसा कि यहाँ फिगर लिखा है कि ये तो 8 और ज्यादा से ज्यादा 9-10 साल के अंदर अंदर एट्रोपिड हो जाता है. तो दैट्स द फंक्शन. एट्रोपिड होता है एंड ऑल हॉर्मोन्स रिले व्हाट सर्विस? डिलेड सर्विस. जिस दिन मेलाटोनिन बॉडी में इनएक्टिव होता है उससे 6 महीने पहले तो वो ग्लैंड इनएक्टिव हो चुका होता है, लेकिन तब तक जितना मेलाटोनिन वो बॉडी में बना गया था उसका भी इफेक्ट खत्म होते होते शरीर में 6 महीने लग जाते हैं. ठीक 8th ईयर खत्म होते होते मान के चलिए, एक प्रैक्टिकल कंडीशन, मेल हो या फीमेल हो, 8th ईयर खत्म के 9th ईयर लग रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, और अंदर ग्लैंड क्या हो चुका है? एट्रोपिड. लेकिन इतने सालों से जो 9 साल 8 साल तक एक्टिव था, जितना मेलाटोनिन वो बना के गया उसका असर भी एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा. वो होते होते 4-5-6 महीने लग जाते हैं. जिस दिन भी पूरा असर खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि जितना भी मेलाटोनिन था वो सब भी खत्म हो गया और एक ग्लैंड तो अब एट्रोपिड है. नो मोर मेलाटोनिन एंड ऑल दीज हॉर्मोन्स. तब जाके वो असर आता है और सो कॉल्ड hypothalamus get activated, genetically influenced to produce which hormone? GnRH. GN gonadotropin releasing hormone. वो भी रिलीज होके रातों रात थोड़ी असर करता है. एक रात सो गए अगले सुबह उठे तो बिल्कुल बॉयज दाढ़ी के साथ ऐसे, अरे. long lasting. There are some functions in the body which doesn't need speeds. When I started the chapter मैंने ये 2 टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किए थे. जहां स्पीड के साथ तुरंत रिस्पॉन्स देने की बात है, that's reflexes imparted by nervous system. But there are some internal functions altogether called metabolism, growth, development, and many such reproductive activities which need a long lasting effect. They doesn't need speed, they need a duration. तो उस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कैसे जीएनआरएच रिलीज होता है और फिर रिलीज होता है एक दिन गोनाडोट्रोपिन. क्या रिलीज होता है? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफएसएच प्लस एलएच, एंड देयर बिगिंस द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. मेल्स और फीमेल्स में ये दोनों इवेंट होते हैं बट रिमार्केबली डिफरेंट. फीमेल में ये रिमार्केबली बीइंग सिग्नल्ड बाय अ फिजिकल चेंज इन द बॉडी कॉल्ड, है ना, ब्लीडिंग, फ्लो ऑफ ब्लड, मेंसेस, मिनार्की. whereas in males physical mental behavioral changes होते हैं बट अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है. उसका कोई बेसिक ऐसे साइन नहीं है, बट ऑनसेट ऑफ मेल puberty in males is characterized by what? Spermatogenesis. onset of spermatogenesis. तो फीमेल में भी तो हम oogenesis बोल सकते हैं. नहीं, फीमेल में onset of puberty is not oogenesis, it is menses, it is menstrual cycle. क्योंकि इन फीमेल्स oogenesis soon begin before birth, before and after birth no more oogonia is being added. तो ये जो सेंटेंसेस है, these are the reasoning part, आंसर की जो लिखा है इसका कुछ मायने हैं, तो उनको बारी बारी से हम साबित करेंगे. तो गौर करिएगा, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस में आपके सामने सीरीज है. मेलाटोनिन के बाकी फंक्शंस पे आ रहा हूं. फिलहाल ये और ये क्या रोल प्ले करता है, ह्यूमंस का रोल कंप्लीट. अब क्या लिखा है कि दिस ग्लैंड स्टिमुलेट द गोनाड इन सम एनिमल्स वेयर एज इनहिबिट समझ में आ गया किस में करते हैं. ये जो मैंने डिस्कस किया इन प्राइमेटा mammals and whom they are monkeys, apes and human. क्योंकि आज पूरी दुनिया में प्राइमेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये 3 मेंबर है, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन. बाकी मछलियों से लेकर, फिशेस से लेकर, वर्टिब्रेट्स में साइक्लोस्टोम से लेकर, है ना, एग्नाथा, गेनाथा, फ्रॉम साइक्लोस्टोम स्टिल non-primate mammals, still this gland persists and continuously work as a biological clock, third eye. अब पीएमटी में जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल यही टेक्निकल टर्म यूज करके आता है, इसलिए मैं वैसे ही लिखवा दे रहा हूं. इन लोअर वर्टिब्रेट्स करके, फंक्शंस इन लोअर वर्टिब्रेट्स स्पेशली रिकॉग्नाइज करते हैं. यानी
फिशेस से लेकर बर्ड्स तक सीजनल चेंजेस, डेली चेंजेस यानी डायurnal चेंजेस, दिन और रात, बायोलॉजिकल क्लॉक, थर्ड आई, स्लीप वेक साइकिल का क्या मतलब है? व्हाट इज दैट बायोसर्केंडियन साइकिल? तो सीजनल चेंजेस, डायurnal चेंजेस, पिगमेंटेशन, तो फिशेस से लेके बर्ड्स में आपको ये चीज दिखते है, क्योंकि मौसम बदलता है, ब्रीडिंग सीजन आता है, ब्रीडिंग सीजन के चलते हुए उनमें गोनाड्स एक्टिवेट हो जाना। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? ठीक है ना? तो दिस ग्लैंड स्टिमुलेट गोनाड्स इन सम एनिमल्स वेयर एज इट इनहिबिट। तो इस स्टेटमेंट को दो जगह से साबित हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, इन लोअर वर्टिब्रेट्स, फिशेस टिल बर्ड्स, सीजनल चेंजेस, डायurnal चेंजेस। सीजनल चेंजेस में लॉन्ग डिस्टेंट माइग्रेशन करते हैं। तो बर्ड्स हो और दूसरे ऐसे फिशेस हो जो सी वाटर टू फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ जाना, कब वो तय करते हैं? ये सब इनका एहसास इनको यही ग्लैंड कराता है। वैसे डे टू डे चेंजेस, दिन और रात का एहसास, हर सुबह होते सी सूरज की रोशनी के साथ ही जो है पक्षियां जो हैं, दे लीव देयर नेस्ट एंड मूव अराउंड टू कलेक्ट फूड एंड अदर थिंग्स ऑफ देयर डे टू डे नीड्स, एंड दे बैक है ना टू देयर नेस्ट, रिटर्न बैक टू देयर नेस्ट बाय द सनसेट, यानी जिसे हम कहते हैं डेली माइग्रेशन। पिगमेंटेशन की बात करें तो स्पेशली बर्ड सॉरी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और ये इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। व्हाई? बिकॉज बोथ कैन यूज इट टू एग्जिबिट कलर मिमिक्री। कलर, तो मेरे बुकलेट में एक स्टेटमेंट लिखा है कि मेलाटोनिन कौन सा हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन MSH, कौन सा हार्मोन? बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर ह्यूमन बींग, क्योंकि ह्यूमन बींग में MSH एक कैसा हार्मोन है? वेस्टिजियल हार्मोन। कैसा हार्मोन है वो? हम पिट्यूटरी के साथ देख लेंगे। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमें बनता है, बट वेरी वेरी इंटरमिटेंट अमाउंट बिलो द ऑप्टिमम एंड डजंट इंपैक्ट, क्योंकि उसका टारगेट होते हैं मेलानोसाइट सेल्स, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो हमारे एपिडर्मिस सबसे नीचे वाले लेयर जर्मिटेवम में मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, उन पर उसका कोई असर नहीं होता हम लोग में। तो ये फिर स्टेटमेंट जो लिखा है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन्ड है। सबको आ रहा है समझ में? देखने में तो इतना सा एक पैराग्राफ लिखा है पीनियल ग्लैंड, सबको आ रहा है समझ में? लास्ट हाफ एन आवर से ऊपर हो गया मैं इस पे बात कर रहा हूं, लेकिन सारे रिलेटेड क्वेश्चन कवर। पीनियल ग्लैंड इज एन एट्रोपिड कैटेगरी ग्लैंड, उसका एंडोक्राइन सेल का नाम, उसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है, और फाइनली वो क्या कर सकता है और क्या नहीं करता है, वॉट एवर सो, और क्यों उसको ब्रेन सैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बनाया और उसको साबित करते हुए स्टेटमेंट्स, और फाइनली हार्मोन्स प्रोड्यूस ऑल द अबव, या फिर किसी और हार्मोन के साथ होगा आंसर एनसीईआरटी बेस्ड। तो मेलाटोनिन तो है ही प्रॉमिसिंग हार्मोन, जिसके नाम से जाना जाता है पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हैज ऑल ओवर रोल ओवर मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, और उनका एहसास कराना, परसेप्शन कराना, जिससे वो लोअर जो स्पेशली वर्टिब्रेट्स है वो अपने गिवन हैबिटेट को एडेप्ट करते हैं, दे ब्रिंग चेंजेस इन देयर बिहेवियर, और ऐसा कर पाना ही बायोसर्केंडियन साइकिल है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? एवरीवन। तो पिगमेंटेशन वर्ड अब क्या लागू होता है, कहां पर एमेंड होता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स स्पेशली यूज्ड दैट कलर मिमिक्री कॉल्ड कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं उसको? तो
फ्रॉग हो या कोई भी स्नेक हो, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इसके इनहिबिटरी इफेक्ट से एमएसएच को रोकता है, और एमएसएच रुकेगा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेट कम होगा, तो पिगमेंटेशन डार्क नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो उसका शरीर का रंग आसपास के एनवायरनमेंट से कंट्रास्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? सबको आ रही है लॉजिक समझ में चीज, है ना? तो दैट्स द वे। तो थैंक्स टू मेलाटोनिन दैट दे हेल्प टू एग्जिबिट दैट स्पेशल वे ऑफ अडेप्टिंग टू द गिवन एनवायरनमेंट टू गेट सेव प्रिवेंट अगेंस्ट प्रिडेशन, अगेंस्ट प्रिडेशन। तो एज सच पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नोन नहीं है मेडिकली अमंग ह्यूमन बॉडी। नाउ पॉइंट टू नोटेड, ये तो फंक्शन समझ लिए, सब कुछ है, बट एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन कि रिमूवल ऑफ पीनियल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? एक्सपेरिमेंटली, या मान के चलिए जेनेटिकली किसी लोअर वर्टिब्रेट में डिजेनरेट हो गया, तो सबसे पहले तो, है ना, दिस इज वन ऑफ द लाइफ परपिचुएटिंग हार्मोन। तो ऐसे लोअर वर्टिब्रेट्स जिन लोग इन पर डिपेंडेंट है अपने डे टू डे बिहेवियर के लिए, उनका ये सर्केंडियन साइकिल ब्रेक होगा। दे विल डजंट हैव देयर परसेप्शन ऑफ सीजनल चेंजेस। सबको आ रही बात समझ में? मतलब डे टू डे लाइफ को परपिचुएट करने में दिक्कत आएगी। और व्हाट अबाउट दिस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? दे विल एनकाउंटर व्हाट? प्रिडेशन। क्यों? क्योंकि वो अपने कलर चेंज पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। दैट इज द आंसर। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन, डिफरेंट स्ट्रोक। दोज हु आर ब्लाइंड बाय पिनियल ग्लैंड का और एक नेचर, दोज हु आर ब्लाइंड बाय birth, those people who are blind by birth, right, they may suffer from, suffer word galat hai, they exhibit sexual precocity। क्या एग्जिबिट करेंगे? दैट इज ओवर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनिटल्स इंक्लूडिंग बिफोर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी एज क्या है? 10 से 15 के बीच, एक एवरेज आप ऐसा मान के चलिए, इंक्लूडिंग बोथ जेंडर मेल एंड फीमेल। 10 से 15 साल के एज में जो चेंजेस आने चाहिए वो 3-4 साल पहले आना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इस ग्लैंड का नेचर है कि ये एक फोटो सेंसिटिव ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? पीनियल इज अ फोटो सेंसिटिव, लेकिन यही फोटो सेंसिटिव नेचर ह्यूमन लूज कर देता है विथ इंक्रीजिंग एज बाय द ऑफ 8 years। फोटो सेंसिटिव नेचर, और उसी फोटो सेंसिटिव नेचर बाकी सब में परसिस्ट करता है, जिसके वजह से वो बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कर पाता है। क्योंकि जिस हार्मोन प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं मेन है मेलाटोनिन, बाकी सब तो अपनी जगह है। मेलाटोनिन इज द ओनली हार्मोन ऑफ डार्क आवर्स, हार्मोन्स ऑफ नाइट टाइम में। सुबह होते से ही मेलाटोनिन सिक्रीशन बंद हो जाता है। दिन भर ये ग्लैंड सनलाइट से एनर्जी को जो है एक सोलार बैटरी की तरह एब्जॉर्व करता है। कैसे? मैं अभी डायग्राम में बता रहा हूं। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? अभी अभी मैंने स्टेटमेंट पहले क्या दिया? डिफरेंट स्ट्रोक। दोज हु आर ब्लाइंड बाय बर्थ in human population exhibit a phenomena, sexual precocity is not a disorder, एक unusual phenomena है, not accepted, a stigma। कि एक 6 साल का लड़का या 8 साल के अंदर के जो लड़का या लड़की हो, चाइल्डहुड स्टेज है, और उसके अंदर अचानक से वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के फीचर्स जो उम्र के 13-14 पे एंगोरेज करके आना चाहिए, वो 7-8 साल पहले, 5 साल मिनिमम पहले आ रहा है। तो दैट इज समथिंग अनयूजुअल, टेकन ऑकवर्ड, बट इट इज नॉट गोइंग टू मेडिकली हार्म द बॉडी। उससे कोई हार्म बॉडी में नहीं आता, इसलिए मैंने सफर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ये एक एग्जीबिशन है। क्यों? क्योंकि उन फीचर्स पर, उन सारे चेंजेस पर जो इनहिबिटरी इफेक्ट था इस हार्मोन का अलोंग विद दिस, वो बाय बर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यू टू ब्लाइंडनेस नेवर द आईज हैव रिसीव्ड द सनलाइट, स्ट्राइक नहीं किया, इंसिडेंट रेट्स अंदर नहीं गए। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है?
यहां से ऐसा ऑप्टिक नर्व जाता है, क्या जाता है ना, दोनों तरफ से ऑप्टिक नर्व बाहर पेनिट्रेट करके निकलते हैं, इनर्वेट करते हैं, एंड दे गो ओवर इन अ क्रॉस मैनर इन अ ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, यानी नाउ दिस इज द प्रेजेंटेशन कि एक नर्व यहां से यूं जाएगा, एक नर्व यहां से ऐसे आएगा, दिस एरिया इज कॉल्ड ऑप्टिक कियाज्मा ओवर पीनियल ग्लैंड। तो जब लाइट टकरा के और सब चीजों के इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं, वही इंपल्सेस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रिगर करते रहते हैं थ्रू आउट द डे टाइम। डायोर्नल हार्मोन, कैसा हार्मोन, सॉरी डायोर्नल एक्टिवेशन, क्या है उसका, दिन भर वो सोलार बैटरी की तरह क्या होता रहता है, एक्टिवेट। और फिर डार्क आवर्स में ऑन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जैसे ही जो है दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, देन द हार्मोन प्रोडक्शन स्लोली इंक्रीज। दिस इज अ स्टेटमेंट टू बी रिगार्डेड रिगार्डिंग पीनियल। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पीनियल ग्लैंड? द लेवल ऑफ मेलाटोनिन इंक्रीजेस विथ व्हाट, डार्क आवर्स। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस इज द हार्मोन ऑफ डार्क आवर्स। सबको आ गया समझ में? अब जो ब्लाइंड है बाय बर्थ, उनमें क्या होगा, ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होगा, तो ग्लैंड कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, सो कॉल्ड मेलाटोनिन एंड रेस्ट अदर चीजें उनमें बनेंगे ही नहीं, और नहीं बनेगा तो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं है। तो सो कॉल्ड जो गोनाडोट्रोफिन्स का रिलीज समय से पहले, और उसके वजह से वो सारे प्यूबर्टल चेंजेस, फिजिकल, mental and behavioral, all together called pubertal changes, they will come along before puberty, before the age of puberty. Clear? So it is a hormone of dark hours. It is a photosensitive gland. Clear? It is an antigonadial hormone. Answer होगा all the above. लेकिन एंटीगोनाडियल हार्मोन फॉर हुम? नॉन सीजनल ब्रीडर्स। हुम? सीजनल ब्रीडर्स के लिए तो ये क्या है, इट प्रमोट्स गोनाड अकॉर्डिंग टू द सीजनल चेंजेस। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है। तो दैट्स ऑल अबाउट पीनियल ग्लैंड। मैं उसको रीड आउट करूंगा थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट, नाउ आई एम मूविंग टू हाइपोथैलेमस। कौन सा हिस्सा? हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस पढ़ा के बस उसका कंट्रोल यहां तक समझाऊंगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे नहीं बढ़ेंगे हम। क्लियर? देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो विद इन 15 मिनट्स कवर हो जाएगा, थायराइड वर्सेस पैराथायराइड। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? थायराइड वर्सेस पैराथायराइड, क्वेश्चन ओरिएंटेड। और एक छोटा सा ग्लैंड के बारे में डिस्कशन, थाइमस, क्योंकि वो तो वो भी पीनियल की तरह कैसा है, एक एट्रोपिड ग्लैंड एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी, एट द। अब गौर करिए, पीनियल प्यूबर्टी को आने से डिले करता है, आने से मतलब कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक एज पे आए, उससे पहले ना आए, दैट व्हाट इट मींस डिले। सबको आ रहा है समझ में? दिस इज नॉट अ मैल फंक्शन, इट्स द एक्चुअल रोल कि पीनियल ग्लैंड हेल्प्स इन डिलेइंग द प्यूबर्टी अप टू एप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन जैसे ही वो हट गया, वो इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म। फीमेल के टर्म्स में लिखा है, यानी फीमेल्स में जिस दिन सब रिलीज होगा, एंड द डे कम्स व्हेन व्हाट विल स्टार्ट, द एडवेंट ऑफ फर्स्ट मेंसेस इन द लाइफ, यानी प्यूबर्टी सेट हो गया, ऑनसेट हो चुका है। सेम इन मेल्स, अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस उसी उम्र के दौर में चालू होगा। लेकिन अब वो ओवर एक्सीडिंग ना कर जाए, ओवर डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल्स और सेक्सुअलिटीज ना हो जाए, उस पर कंट्रोल कौन रखता है, जो कि 15-16 साल की उम्र तक जरूरी है, क्योंकि उसके बाद बॉडी के ग्रोथ, इम्यूनिटी, जो पूरे एस्पेक्ट्स हैं वो नियर टू कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 17-18 साल तक। तो ओवर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, जेनिटल्स एंड अदर सच फीचर्स, उन पर होल्ड बनाए रखना, एक कंट्रोल बनाए रखना, डोमिनेंस, आंसर है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? बाकी प्राइमरीली थाइमस इज अ लिम्फेटिक ग्लैंड, इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ, इंडीड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, क्या कहेंगे उसको। और इसके लिए वो एक कंटिन्यूअस डे वन से हार्मोन बनाता है, थाइमोसिन, दी ओनली हार्मोन थाइमोसिन। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सबको आ गई मेरी बात समझ में? बट लेट मी मूव अहेड। यहां तक सबको आ गया समझ में? नोट डाउन कर लिया सबने?
ये पोर्शन तो लिख ही लिया होगा आप सभी ने। So the next heading is ह्यूमन बीइंग में बायोलॉजिकल क्लॉक ब्रेन में होता है, एसन सेंटर बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में बताएंगे, पीनियल ग्लैंड नहीं है। हाँ तो वो तो बचपन में बच्चे ज्यादा सोते हैं कम जागते हैं, बट ट्रेडिशनली दैट आर नॉट द क्वेश्चन ऑफ पीएमटी, कभी आया नहीं है तो अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन। So the next discussion is hypophyseal pituitary axis. We are going to discuss regarding hypothalamus, but hypothalamus anatomically arrange itself in coordination with the endocrine system to give rise to hypophyseal pituitary axis. Now, first of all, you have to be little bit quick today. Now here, first of all, I am going to go through that how hypothalamus, first of all, is a part of nervous system. Recognized basically as component of limbic system. Hypothalamus being part of endocrine system, first of all it is a part of human nervous system and component of limbic system. Limbic system is being defined as emotional brain. So definitely as already mentioned कि hypothalamus nervous tissue से बना है, ग्रे मैटर। तो यहां मौजूद जो बहुत तरह के न्यूरॉन्स हैं और वो सारे न्यूरॉन्स first of all they make different center of control. What they are? Thirst, hunger, appetite, satiety center, प्यास लगना, भूख लगना, है ना, और क्या बोलते हैं एक बेसिक एपिटाइट, खाने की इच्छा होना, एपिटाइट मतलब खाने की इच्छा होना, और भूख लगना दो अलग अलग बात है। और फाइनली तृप्त होना, एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग इमोशनली किसी भी फिजिकल काम को करते हुए, किसी चीज को देखते हुए, खाना खाने के बाद। हालांकि कुछ लोगों का ये सेंटर कभी भरता ही नहीं है। हाँ ठीक है, नो मोर कमेंट्स।
तो थर्स्ट, हंगर, एपिटाइट, सैटिटी, फीलिंग ऑफ प्लेजर, हेट, लव, सेक्सुअल अर्ज, ऑस्मोरेगुलेटरी, finally anger, rather called bringing some aggression, rage. तो जितने भी मैंने लिस्ट आउट किए हैं, समथिंग अराउंड 12 सेंटर्स, देयर आर मेनी मोर, करीब 18-20 सेंटर्स होते हैं, बट आपके स्टेज से जो याद रखने हैं कॉमनली टिप ऑफ टंग, वो ये सारे सेंटर्स हैं। और ये सारे जितने भी टर्म्स लिखे हैं, दिस शो द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे और भी सेंटर्स ऑफ इमोशंस, लिम्बिक सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के पास व्हाटएवर न्यूरॉन्स का एक पूरा बंच है, टुगेदर कंस्ट्रक्टिंग द ग्रे मैटर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस, उसके न्यूरॉन्स आर मेंट टू कंट्रोल द फंक्शन इन अ डिफरेंट वे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनाना। तो वहां के न्यूरॉन्स का नेचर तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव करना, जनरेट करना, कंडक्ट करना। Now that's the difference and that's the modification. The hypothalamus being the commander gland, it is a part of nervous system, component of limbic system. वो अपनी जगह ठीक है। इमोशनली इतने सारे एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को हायर सेंटर से कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयारी कराता है हाइपोथैलेमस। लेकिन जब तैयार कराता है स्टेट ऑफ इमोशन को एनकाउंटर करते हुए, किसी चीज को लेके गुस्सा आ रहा है या कोई चीज अच्छा लग रहा है, हैविंग अ प्लेजर फीलिंग, या वॉट एवर, सो थर्स्ट, जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है, द पर्सन कुडंट इमोशनली गेट इंडल्ज इन एन एक्टिविटी, जब तक सैटिटी ना मिले, प्यास ना बुझ जाए, तब तक डिस्टर्ब होंगे कहीं ना कहीं। तो दैट्स ऑल इमोशनल सेंटर्स। भूख लगना, आप कोई काम कर रहे हैं, 2 चीज हो सकता है, या तो आपका विल पावर, हायर सेंटर्स जो विल, आपकी पर्सनालिटी विल को डिसाइड करता है, वो इतना हावी है कि आपके हंगर को डिप्रेस कर देता है, क्योंकि यू आर टेकिंग इमोशनली दैट वर्क एज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, एज अ स्टेट ऑफ, और उसके चलते हुए कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार एड्रेनलिन बनाकर आपके हंगर पॉइंट को क्या करके रखता है? डोमिनेट, इनहिबिट। So there are many such situational things actually happening inside the body, varies from person to person. So whatever, so लेट अस, ये तो मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच से बात को कोरिलेट करने की कोशिश की, बट लेट अस कम टू द थ्योरी, क्वेश्चन ओरिएंटेड, कि ठीक है, दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द नेचर ऑफ हाइपोथैलेमस, इट्स अ ड्वेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, equally works for nervous system and also for endocrine. For endocrine system, hypothalamus is a commander gland, and if it is so, then how it is being imparted? It is being imparted by some modified neurons, by some which are present in the hypo, among those neurons जो ये सब काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ न्यूरॉन्स बन जाते हैं न्यूरोसिक्रेटरी एंड ऑप्टिक सेल्स। कैसे सेल्स? Now this is mere presentation. ये रहे वो न्यूरो secretory cells on one part of the hypothalamus. और ये रहे ऑप्टिक न्यूक्लियाई सेल्स, ऑप्टिक न्यूक्लियाई सेल्स। सो दीज सेल्स हैव व्हाट टेंडेंसी, उनका एक एंड ब्रेन के हायर सेंटर्स के साथ कनेक्टिविटी खुद यहां दूसरे न्यूरॉन से जो अलग अलग इमोशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए जिम्मेदार है, उनसे कनेक्टिविटी बनाकर एसोसिएशन न्यूरॉन्स, कौन से न्यूरॉन्स? एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, उनसे सब कनेक्ट करके they are responsible to get triggered by electrical impulses, ठीक है।
लेकिन अब दूसरे एंड पे क्या होना चाहिए, ये तो एक्सॉन्स है, टीलोडेंड्रॉन्स, टर्मिनल, वहां तो रिलीज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही, न्यूरोट्रांसमीटर्स, बट नो, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सम केमिकल मैसेंजर, उनकी भाषा चेंज हो जाती है, टर्न फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भाषा से वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिर्फ केमिकल भाषा में. So that's make them modified neurons. One side neurosecretory and another optic nuclei cells. These neurosecretory cells now have the tendency to produce the neurohormones. They produce the neurohormones. These neurohormones are of two types: IH, RH, inhibiting hormone, releasing hormone. So thereby making the hypothalamus to act as a commander gland. Whom it is going to command? किसको command देंगे? मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी, और उसके भी एंटीरियर पोर्शन को. किस पोर्शन को? ये रहा वो एडिनो हाइपोफाइसिस. कौन सा पार्ट? जो खुद दो हिस्से में, एंटीरियर और मिड न्यूरो, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी में डिवाइडेड है, और ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस. तो टर्म्स रटने की जरूरत नहीं, उसके कुछ रीजंस है. न्यूरो इसलिए क्योंकि यहां जो हार्मोन्स है, यहां मौजूद होते हैं हार्मोन स्टोरिंग सेल्स. कौन से सेल्स? उनका काम है हार्मोन को स्टोर करना. कौन सा हार्मोन? जो हाइपोथैलेमस के ऑप्टिक न्यूक्लियाई सेल से बन के आए हैं. एंड दीज सेल्स, स्टोरिंग सेल्स, आर पिट्यूटरी, and they are going to store and thereafter release. Store and release. प्रोडक्शन नहीं, रिलीज, क्योंकि प्रोडक्शन यहां हुआ था इनका. इनको हम कहते हैं, नाउ दिस इज द टर्म टू बी यूज्ड फॉर एक्सनल हार्मोन. क्या बोलेंगे? क्योंकि ये ऑप्टिक न्यूक्लियर सेल्स बना के उस हार्मोन को अपने एक्सॉन एंड से रिलीज, यहां पर रिलीज करते हैं, फिर प्रोड्यूस करके एक्सनल हार्मोन्स, जहां जो यहां स्टोर होगा और जरूरत पड़ने पे कंडीशनली रिलीज होगा. एंड दोज आर एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड से 13 हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन आपको तो पढ़ने हैं सिर्फ 8. कितने? 2 पढ़ने हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और 6 हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर. और यहां मैं जो 6 हार्मोन्स लिस्ट लिखूंगा यहां पर, उनके पीछे ही आईएच और आरएच जोड़ दो. अगर 6 हार्मोन यहां है तो यहां से कितने हार्मोन्स बनेंगे? अकॉर्डिंगली 12 एज आईएच और आरएच. ठीक है ना? वंस यू सेट ऑल दिस इन द माइंड. सबको आ रही है मेरी बात समझ में? एकदम क्लियर है यहां तक? We are on the hypophyseal pituitary axis. अच्छा, ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट द क्वेश्चन इज, ये तो समझ में आया कि ये हार्मोन यहां से यहां तक आया कैसे, स्टोर हो गया एंड सो ऑन. रेस्ट इनको देख के 2 शब्द याद होने चाहिए: एडीएच, ऑस्मो रेगुलेटरी हार्मोन. यस और नो? ADH as a vasopressin primarily, क्योंकि उसका काम है टू ब्रिंग कॉन्स्ट्रिक्शन, टू ब्रिंग ऑन बीइंग रिलीज, पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके घटे हुए ब्लड प्रेशर को, लोअर ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर नॉर्मल कर देना. बाय दैट टाइम जब इसका टारगेट सेल कौन है? डीसीटी सेल्स ऑफ नेफ्रॉन. डीसीटी सेल्स ऑफ, वहां पर जाके वाटर को क्या कराना? रीअब्सॉर्ब along with electrolytes. और ऐसा करते हुए ब्लड वॉल्यूम गेन होना, ब्लड प्रेशर गेन होना. दैट्स ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं. वेल वी वेर डिस्कसिंग रास, किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा था. सिमिलरली ऑक्सीटोसिन के लिए एक शब्द यहां मेंशन करके रखे हैं. इंडीड 2 टर्म्स. इट इज द हार्मोन विच एक्ट एज बर्थ हार्मोन. सब कंटेंट सिस्टमैटिकली बुकलेट में लिखा है, बट एक बार मैं उसको सिंक्रोनाइज करके ऐसे समझा दे रहा हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना आप एनसीईआरटी रोज बैठ के पढ़ते रहोगे पैराग्राफ टू पैराग्राफ, लाइन टू लाइन, या कोई वो बुकलेट.
वो तो एक दिन आपको घर पे आधा घंटा पूरा एक सीक्वेंस में आप रीड आउट करें और कोरिलेट करें कि क्लास में किस सीक्वेंस और कैसे कैसे कोरिलेट करके हैपोजिडली पजल करके फिर उसमें से बाहर निकल के समझाया गया है ना, क्योंकि बुकलेट में तो एट अ स्ट्रेच एक लैंग्वेज में चीजें लिखी रहती है, लेकिन वी कंस्ट्रक्ट दैम इनटू रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कि यस, ऑक्सीटोसिन द बर्थ हार्मोन एज वेल एज मिल्क ejecting hormone milk, because ultimately it performs and participate in fetal ejection reflex. कौन सा reflex? And milk ejecting reflex. क्या ये दोनों चीजें होती हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो तो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द चैप्टर लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उस दिन the source hormone which actually participate, वो आपको याद रहना चाहिए, posterior pituitary, and from they are not produced, they are released, axonal hormones released। ठीक है, कमिंग बैक टू द कंसेप्ट, अब ये हार्मोन यहां तक अपने यहां पर अलग अलग तरह के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं मौजूद, उन तक कैसे ये पहुंचेगा? सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड, हाइपोफाइसियल पिट्यूटरी एक्सिस, थैंक्स टू प्रेजेंस ऑफ, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं ये सब आपको अच्छे से लिखवा चुका हूं। आज वो दिन आ गया कि हम उस पर बात करेंगे। अब क्या है हाइपोफाइसियल पोर्टल? तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एज लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा कैसे बनता है? एज पार्ट ऑफ, या हाइपोथैलेमस कॉमनली बिलोंग टू विच टू गिवन अरेंजमेंट, मतलब अब ऑप्शंस फलाना सिस्टम लिखा रहेगा, ये है ना ब्रेन स्टेम, और ये तो तुम्हें डिसाइड करना है ऑप्शन देख के। आंसर होगा जिसमें पेयर में हाइपोफाइसियल और लिम्बिक सिस्टम लिखा होगा। एट लास्ट सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स क्या है पूरे डिस्कशन में? एवरीवन नाउ, न्यूरोसिक्रेटरी, न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है, ये बनते हैं। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पोर्टल सिस्टम? थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएं। bypass pathway, what pathway? Of double circulation, चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें एक अलग से पैराग्राफ ही डिस्कस्ड है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। और उस पैराग्राफ में पूरा समझाया गया कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड सो ऑन, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, फायदा नुकसान, जो भी वॉट एवर फीचर्स, व्हाट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट अबाउट इट। बट एडिशनली a modified pathway, the double circulation exhibit uniquely inside the body among vertebrates, among, और वर्टिब्रेट्स में भी, मैमल्स में वो यूनिक पाथवे खुद दो तरह के हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन विच सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन, एंड दोनों ही बाईपास पाथवे है। और वो बाईपास पाथवे का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, वो एक क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट उस चैप्टर से। लेकिन फिलहाल मुझे आपको यहां पर इस ग्लैंड को, इस हिस्से को, नर्वस सिस्टम के इस हिस्से को क्या साबित करना है? कमांडर ग्लैंड। और ये अपना कमांडिंग नेचर किसके वजह से एग्जीक्यूट कर पाता है? ड्यू टू दी हाइपोफाइसियल पोर्टल अरेंजमेंट। व्हाट इज हाइपोफाइसियल पोर्टल अरेंजमेंट? देयर आर टू ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग इन इट, ऑर्गन 1 एंड 2, दैट्स द कंसेप्ट। और बाईपास सर्कुलेशन ये कहता है, या डबल सर्कुलेशन का स्टेटमेंट है कि जो भी अरेंजमेंट है, ब्लड ऑलवेज पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन। एंड इफ इट इज सो, देन अगर एक ऑर्गन तक बाय सम मींस ब्लड डायरेक्टली पहुंचा है, तो जब उससे ब्लड वापस लौटेगा तो डायरेक्टली हार्ट की तरफ आएगा, बीच में कहीं बाईपास नहीं होना चाहिए, ये रूल है। दिस इज द रूल ऑफ डबल सर्कुलेशन। लेकिन क्या वाकई में ही शरीर के सारे पाथवेज इस रूल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, देयर आर सम पाथवेज। तो ह्यूमन डबल सर्कुलेटरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इटसेल्फ इज ऑफ टू टाइप्स, आर्ट्रियल एंड वेनस। आर्ट्रियल एंड,
रेड कलर से लिख रहा हूं, लेकिन लिख रहा हूं वेनस सिस्टम। तो हम जिस पोर्टल सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट्रियल सिस्टम की वेनस। आंसर होगा वेनस। यानी उसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कितने कंपोनेंट्स? 3। पोर्टल सिस्टम बनाने में 2 ऑर्गन्स और दोनों ऑर्गन के बीच एक वेन, और उस वेन को कहते हैं पोर्टल वेन। क्या कहते हैं? फिलहाल हम वेनस सिस्टम पे जो बात कर रहे थे कि वेनस सिस्टम का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसे पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं, and human as a vertebrate mammalian member have 2 portal system in the body, hepatic portal system and hypophyseal. Hypophyseal में organ 1, organ 2 और एक पोर्टल वेन इन्वॉल्व है। ऑर्गन 1 होता है हाइपोथैलेमस और ऑर्गन 2 होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन? ये सेटअप है। डबल सर्कुलेशन के चलते हुए एक आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स ब्रेन, आप देख सकते हैं सीधा चला गया ब्रेन की तरफ। कैरोटिड आर्टरी आता है, उससे ब्रांचेस निकल के ब्रेन की तरफ जाने के लिए कहां से एंटर होता है? फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, सीधा। तो लौटते वक्त भी होना क्या चाहिए था? एक वेन हाइपोथैलेमस से नीचे उतर सकता था। तो ये मैं बने रहने दे रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रॉन्ग। ऐसा अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। अ यूनिक अरेंजमेंट। व्हाट इज दैट? कि अंदर ही अंदर वेन आकर सबसे पहले बीच में कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? इस कैपिलरी नेटवर्क में ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं, और फिर उन हार्मोन्स को ले आते हुए ऑर्गन नंबर कौन है? हाइपोथैलेमस। और ऑर्गन नंबर 2 कौन है? और वो फिर यहां आके एक नेटवर्क बनाते हैं। तो पोर्टल वेन कहां है? एक्स यहां की वाई यहां, मतलब डायग्राम में मार्किंग करके अब बताइए इस पाथवे में पोर्टल वेन कौन है? ये मतलब कुछ भी दिया होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये वाला हिस्सा बिटवीन ऑर्गन 1 एंड 2, क्योंकि डायरेक्ट वापस चले जाना चाहिए था हार्ट की तरफ, लेकिन ये बाईपास कर गया। जो वर्ड यूज किया देखिए, बाईपास सर्कुलेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। और ऐसा पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के किस हिस्से में? वेनस सिस्टम। कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ऑर्गन 1 एंड 2, और उनके बीच एक वेन, पोर्टल वेन, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजों को कंडक्ट कराते हुए एक फंक्शन को वहीं के वहीं नियर डिस्टेंस पे अंजाम देते हुए वापस आता है, क्योंकि फालतू में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके फिर आके टारगेट पे इंपैक्ट करे, क्योंकि जो भी चेंजेस हैं डिस्टेंस यहां थोड़ा कम कवर हो। देयरफॉर दैट बाईपास हैज बीन जनरेटेड बाय नेचर इन इवोल्यूशन। सबको आया समझ में? तो मैंने मार्किंग नहीं की है, ये रहा वो पोर्टल वेन। रिलेटेड सारे एंडोक्राइन टारगेट सेल्स इन्हीं के बीच होंगे, और वो अकॉर्डिंगली बनाएंगे सारे हॉर्मोन्स। जब जो सा रिलीज होगा या इनहिबिट होगा, व्हाट आर दो सीरीज ऑफ हॉर्मोन्स? ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन। है ना? जीएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन। अब हर हार्मोन का क्या नेचर है, क्या केमिकल उस कैटेगरी है, कौन ग्लाइकोप्रोटीनस है, कौन प्रोटीनस है ना?
अब वो इंडिविजुअली, वो तो सब आपको अब नेक्स्ट क्लास, ये आज मैं पहले सबको हाइपोथैलेमस समझ में आ गया ये एवरीवन? Yes, it's truly act as an endocrine gland and sorry, commander gland for the complete endocrine system to target the pituitary and direct it by the neurohormones combination of IH and RH. And they uses a unique bypass pathway of the double circulation to execute it. And that's hypophyseal portal system. और यही है जो कि एक ब्रिज लिंक का काम करता है. किसका काम करता है? Between nervous system and endocrine system. Thyroid versus parathyroid. Basically, through this topic, I'm more interested in discussing a part of thyroid which in collateral along with parathyroid keeps a check on a mineral metabolism on the body, that is calcium level. हालांकि उसके बेसिक बातें आपको चैप्टर स्केलेटन सिस्टम के साथ में बता चुका हूं, रेस्ट उसका कंसेप्ट और कोरिलेशन 2 बार पहले भी आ चुका है, बट आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स कवर करने के लिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं. तो थायराइड के साथ कंपेयर करते हुए एक होता है ऑर्थोडॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन आना और एक रिलेटिव क्वेश्चन आना. किसी भी टॉपिक में आपको ये भी फॉलो करना है कि बाकी से कोई मतलब नहीं है, सीधा हाइपोथैलेमस से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन बना तो क्या आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो जो काम करता है उसका रिलेशन अपने आप दूसरे के साथ है, तो फिर एक ड्रामेटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है. तो सेम आई एम गिविंग टू एग्जिबिट द डिस्कशन ओवर हियर बिटवीन थायराइड एंड पैराथायराइड. तो देखिए स्टार्टअप कैसे दिया. थायराइड लोकेशन मॉर्फोलॉजिकली नेक रीजन. अब हम हेड रीजन से नीचे उतर चुके हैं, नेक रीजन में है ना, द लैरिंग्स, बीइंग द साउंड बॉक्स. क्या है लैरिंग्स, कैसे वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, पूरी तरह हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, बस उसका एक हिस्सा है एपिग्लॉटिस. कौन सा हिस्सा? वो बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज. किसका बना होता है? That what I have mentioned while we have completed skeleton system. लेकिन खुद लैरिंग्स क्या है? टोटल 9 कार्टिलेजेस, पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस से बने 6 टाइप. और कैसे वो साउंड प्रोडक्शन और फोनेशन में, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में हेल्प करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया जाएगा. तो ठीक है, दैट्स द एरिया. और उसका जो सबसे फ्रंट सी शेप्ड
सबसे बड़ा कार्टिलेज है उसको हम कहते ही हैं थायराइड कार्टिलेज। क्या कहते हैं? ड्यू टू द एसोसिएशन एंड प्रेजेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड एसोसिएटेड विद इट। एक थायराइड ग्लैंड को अगर हम ऐसे बाहर निकाल के देखें, आइसोलेट करके, तो इट्स अ बाइलोब्ड पिंकिश स्ट्रक्चर और being associated by a middle band like structure called isthmus. ये word important है. It is the structure which is also being used. There is no क्या बोलते हैं relation between the isthmus band like structure over here और female oviduct में जो narrowest part है called isthmus. If we make a cut, a transverse section of the lobe of the thyroid, पूरा ये एरिया लूज कनेक्टिव टिश्यू से पैक्ड है और उनके बीच ऐसे कॉलमनार शेप्ड सेल्स और उनके बीच में थोड़े थोड़े ऐसे टिश्यू पैचेस। So today I am concerned with this portion of the thyroid. Ki what is these tissue patches are? They are a part of endocrine group of polygonal cells called parafollicular cells. कौन से cells? And they are responsible for producing the thyrocalcitonin or calcitonin, chemically as a peptide hormone. नॉन आयोडिनाइज्ड कैसा हार्मोन है ये? विदाउट, यानी थायराइड प्रोड्यूस विच नॉन आयोडिनाइज्ड हार्मोन? आंसर होगा कैल्सिटोनिन। फंक्शनली इट इज अ हाइपोकैल्सेमिक कैसा हार्मोन है? lowers the calcium level in blood, lowers the calcium level in blood by reducing या by reabsorbing it from plasma to bone matrix. तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस में ये रोल प्ले करता है। पेप्टाइड हार्मोन, नॉन आयोडिनाइज्ड हार्मोन, हाइपोकैल्सेमिक, लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड टू नॉर्मल, है ना, टू नॉर्मल। कैसे? बाय रीअब्सॉर्बिंग इट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा इनटू बोन मैट्रिक्स। इट्स अ कैल्सीफाइंग हार्मोन। कैसा हार्मोन है? और ऐसा करने के लिए
मैं यहां ऊपर कंटिन्यूटी में पॉइंट जो है इधर लिख रहा हूं। बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है। इट स्टिमुलेट द osteoblast cells of bone under the influence of, क्योंकि कैल्शियम को कौन रीअब्सॉर्ब करेगा और जाके डिपॉजिट करके न्यू बोन मैट्रिक्स समय समय पे बनाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्मिंग सेल, मैट्रिक्स ऑस्टियोब्लास्ट। तो इट स्टिमुलेट द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ऑफ बोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम and catalyzed by of enzyme alkaline phosphatase। कौन सा एंजाइम? तो दैट वाज रिगार्डिंग द थायराइड पार्ट कंट्रीब्यूटिंग कैल्सिटोनिन। डिसऑर्डर्स एक साथ कंपेयर में देखेंगे जब पैराथायराइड एक बार बता लें। क्लियर है? ये मैं टाँ नहीं रहा हूं, मैं टाऊंगा वहां। सबको पहले ये क्लियर है? Now within the lymph of thyroid, two pairs of lobes, and in total 4 lobes of parathyroid present. Parathyroid as a gland are present in 2 pairs of lobes, total 4 lobes present in lymph of thyroid. दो तरह के सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। लेकिन चीफ सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स का फंक्शन अननोन है। चीफ सेल्स आर दी endocrine cells and they produce the so-called hormone पैराथायराइड हार्मोन पैराथ हार्मोन कहते हैं, और कॉलिप्स हार्मोन। जस्ट एंटागोनिस्टिक, एंटी कैल्सिटोनिन, अगेन ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, और हाइपर कैल्सेमिक,
Now, like calcitonin, parathormone also antagonistic to the calcitonin action. The source is parathyroid, PTH, Collips hormone कहते हैं, produced from the endocrine cells, chief cells, and they are released by low level of calcium in blood. Low level of calcium in the blood is the triggering factor for release of PTH. और ऐसे नेचर को हम ह्यूमरल रिलीज ऑफ हार्मोन कहते हैं. है ना, ह्यूमरल रिलीज. ह्यूमरल मतलब ब्लड में घूमता हुआ कोई सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि हार्मोन कब रिलीज होगा कि नहीं. That way of releasing hormone is followed by PTH, calcitonin, insulin and glucagon. इंसुलिन ग्लूकागॉन तो ग्लूकोज लेवल से तय होता है. तो लास्ट डे मैंने वो सब आपके सामने प्रेजेंट किया था, आज हम इस पर हैं. तो कॉलिप्स पैराथॉर्मोन, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, ह्यूमरल रिलीज ऑफ द हार्मोन, और देन इट बिहेव्स accordingly. So being an hypercalcemic, its function is to increase calcium level in blood to normal by 3 ways. 3 तरीके से करते हैं. पीटीएच परफॉर्म आपने उस दिन सिर्फ एक तरफा देखा था, बट वो 3 तरीके हैं. वो 3 तरीके क्या हैं? बोन मैट्रिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, एंड डीसीटी सेल्स ऑफ नेफ्रॉन किडनी में मौजूद. 3 जगह से कैल्शियम को रोककर रीअब्सॉर्ब करा के अल्टीमेटली कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाना, ये इसका रोल है. तो इट्स अ डीकैल्सिफाइंग हार्मोन. इट्स अ डीकैल्सिफाइंग हार्मोन, और जस्ट ऑपोजिट बोन्स में ये क्या करता है? It stimulates the osteoclast cells. It stimulates the osteoclast cells to resorb demineralize. It stimulates the osteoclast, bone eating matrix dissolving cell, जैसा कह लें osteoclast, to resorb. शब्द देखिए क्या लिखा है? resorb, demineralize the bone matrix by presence of enzyme acidic phosphatase. So that's the physiology of both the hormone together, antagonistic direct relation. लेकिन
अब मैं एक जो टेबल बनाऊंगा, जो उसका प्रेजेंटेशन मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आज उस टेबल को बना के उसके कुछ 5 पॉइंट्स कंक्लूड करूंगा, एंड दैट आर क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स एंड फाइनल टच टू द टॉपिक थायराइड वर्सेस पैराथायराइड। क्योंकि वो अगर ना हुआ, ऐसे 5 काम जो मैं बताऊंगा स्टेटमेंट्स, फाइनली डिसऑर्डर्स, फाइनली डिसऑर्डर्स। और डिसऑर्डर्स वही हाइपर एंड हाइपो, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और बुकलेट भी आपको मिला हुआ है, उसमें मेंशन्ड है। पैराथायराइड पीटीएस से रिलेटेड 2 डिसऑर्डर, ऑस्टाइटिस सिस्टिका फिब्रोसा, अगर क्या बोलते हैं, क्या होगा, ज्यादा बना तो, और अगर कम बना तो जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं मस्कुलर टेटनी, पैराथायराइड टेटनी। लेकिन वही एक जस्ट हल्का सा टच देंगे। पहले यहां तक सबको क्लियर हुआ, सारे पॉइंट्स वेल कनेक्टेड है, कहां एक दूसरे से वो अलग हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, कहां क्या है सिमिलैरिटी, बस ये है बोथ आर वर्किंग फॉर कैल्शियम होम्योस्टेसिस। इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे मेटाबॉलिकली, बट बोथ आर टुगेदर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। Still the time is not out. टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, और यहां देखिएगा मैं अब क्या लिख रहा हूं, कैल्सीट्रायोल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, कैल्सीट्रायोल।
So the presentation is nothing new but the discussion will be something little bit different. This is an interrelationship presentation between the three glands and the respective secretion produced by them. But all the three are targeted in maintaining the calcium homeostasis. लेकिन जो हल्का सा मेंटल हिच आता है कि कौन सा मतलब लैंग्वेज वाइज कि कौन सा हार्मोन किसका साथ दे रहा है, कौन किसके अगेंस्ट है, कौन इनडायरेक्टली काम कर रहा है, कौन डायरेक्टली काम कर रहा है. सो दैट व्हाट एक्चुअली आई वांट टू कंक्लूड टुडे. और ये काम चलेगा, कैल्शियम लेवल बने रहेगा, बॉडी की मेटाबॉलिज्म परफेक्टली, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, नर्वाइन टॉनिक यानी नर्वस सिस्टम न्यूरल टॉनिक अपनी जगह टोन अप रहेगा, मसल्स ढंग से काम करेंगे, बोन्स अपनी मजबूती के साथ रहेंगे. So these are the different areas of the body where calcium are somehow involved. Even blood खुद जो कि मेंटेन कर रहा है, ब्लड में भी एक प्रॉपर्टी होती है क्लॉटिंग, उस क्लॉटिंग में भी खुद ब्लड को कैल्शियम चाहिए एज अ प्राइमरी फैक्टर. तो इतने जगह बॉडी में कैल्शियम कंज्यूम हो रहा है और फाइनली यूज हो रहा है. इवन ब्लड से फिल्टर होके जो सेमेन बनता है, इट इज रिच इन कैल्शियम, इट इज रिच इन semen because that is the calcium which is going to participate in acrosomal reaction. कौन सा रिएक्शन? तो बॉडी के जो इतने सारे मैकेनिज्म्स मेटाबॉलिज्म्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली जहां कैल्शियम इन्वॉल्व हो रहा है, hence there is a need to maintain calcium homeostasis in the body, and which has been forwarded to the three respective components of the body as a gland, and they do it, they coordinate it, control it by the respective secretions. तो आज आप यहां तीन टर्म्स सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में, सॉरी टेबल में आप देख रहे हैं. वन इज एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड रिसॉर्प्शन. None of the above. तो वॉट एवर स्टेटमेंट, क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेटमेंट अब कैसे क्या लिखा जाएगा, फाइनली क्या होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है. तो व्हाट आर दोस स्टेटमेंट्स विल बी टर्न आउट इनटू क्वेश्चन फॉर्मेट, और सो कॉल्ड ABCD आपके सामने ऑप्शन है, और टेक्निकली आप कब किस पे टिक करोगे ये डिसाइड कैसे होगा. है तो बड़ा सिंपल सा चीज, लेकिन नाउ दिस द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ बायोलॉजी. सबको आ रहा है समझ में? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, दुनिया भर के रिएक्शन मैकेनिज्म ग्राफ, बट फाइनली यू गो थ्रू सम केस स्टडी एंड क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स. यस और नो? सेम इज बायोलॉजी. वो तो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि एक होता है ना रट लेंगे, रटना नहीं है, वी मेमोराइज. आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूरा मेमोराइज ही करते हो. डेरिवेशन समझने के बाद अल्टीमेटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज दिए, पुट अप करके आंसर लाना है. वहां आइंस्टीन बन के फॉर्मूला डिराइव नहीं करोगे. अरे यस और नो? क्वेश्चन मैं क्या करूं, दिस इज कॉम्पिटिटिव स्किल. बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को डिराइव करते समय कौन कौन से फैक्टर्स, किन किन कंडीशंस, दैट्स द थ्योरी पार्ट, दैट्स द. तो सेम इज बायोलॉजी. ये जो इतने देर से पढ़ा रहा था दैट्स थ्योरी, और उस थ्योरी को रेसिप्रोकेट करने के लिए लैंग्वेज है. दीज आर द लैंग्वेजेस. नाउ कम टू द क्वेश्चन मेकिंग, कि जब हमने इस तरह से पढ़ लिया है अब इसको कैसे अप्लाई करें. सो मैंने हेडिंग ही दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस. सबसे पहले तो PTH stimulate conversion of cholecalciferol, inactive vitamin D into active vitamin calcitriol. और ऐसा करके डेंजर पॉइंट, PTH indirectly help the absorption of calcium from intestine into blood. बिल्कुल सही बात है. PTH डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली. फिलहाल इनडायरेक्टली हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन टू, क्योंकि ये कर तो रहा है ये,
लेकिन ये खुद कहां से एक्टिव हुआ, इसके वजह से। दैट्स एन अनदर सेकेंडरी रोल, क्योंकि लाइमलाइट पर्दे के सामने तो ये है फंक्शन, कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, क्या करना। तो इस काम को वो अंजाम डायरेक्टली तो खुद दे ही रहा है, क्या इंटेस्टाइन से वो खुद एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, कर रहा है। बट दैट्स द स्टेटमेंट, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। बट उसके बाद ही पीटीएच एल्स, फिर भी मतलब ठीक है, यहां से यहां एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन में नहीं। आया समझ में? रीएब्जॉर्प्शन में नहीं। ये सब आज थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अब रोज रोज थोड़ी साल भर बैठ के ये सब रिवाइज करोगे। अब ये तो हो गया दिमाग में, एक बार कंसेप्ट सेट हो जाने चाहिए। पीटीएच एल्स स्टॉप रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में इनडायरेक्टली हेल्प कर दे रहा है, लेकिन इसके अलावा वो क्या कर रहा है, एल्स, पीटीएच एल्स स्टॉप रीएब्जॉर्प्शन अगेंस्ट कैल्सीटोनिन। सबको ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? सही बात है। मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिखवा सकता था आज तक जो हम बोलता है, पीटीएच इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्सीटोनिन। लेकिन कैसे? क्योंकि उसने एब्जॉर्प्शन करा के यहां तक तो अवेलेबल करा दिया, साथ दे दिया, तो does PTH is synergistic, अगर एंटागोनिस्टिक इसके है, लेकिन does PTH is synergistic to विटामिन D3, इज सिनर्जिस्टिक टू, क्योंकि इनडायरेक्टली इसको बना के इसको एब्जॉर्व तो खुद करवा ही रहा है, खुद भी तो एब्जॉर्व करवा रहा है। और जब दो हार्मोन्स का फंक्शन एक ही एम और डायरेक्शन के साथ हो, उसी को हम सिनर्जिस्टिक एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये कुछ ऐसी बातें हैं ना, मैं अगर ना भी लिखवाऊं, ना भी ऐसे आपके साथ डिस्कस करूं, तो भी एक लेवल के बाद बनना चाहिए आपसे, अगर मैं बात करूं तो। लेकिन ठीक है, दैट्स द पार्ट ऑफ लेक्चर, मैं आपके सामने चीजें क्लियरली लिख दे रहा हूं। तो बस एक बार हो गया, अब आप इसको वंस यू हैव टू ग्रैप्स इट एंड रिकॉग्नाइज इट, टेकिंग डिफरेंट क्वेश्चन स्टेटस, सामने मैंने बनाई दिया है ऑप्शन। अब आप खुद प्रैक्टिस करें कि क्या होने पे क्या होगा, क्योंकि सामने लिखा हुआ है। क्लियर? दैट्स द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस चाहिए, बशर्ते पहले थ्योरी मस्ट बी स्ट्रांग, सब्जेक्टिव स्ट्रांग होगा, ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा। ऑब्जेक्टिव बिना सब्जेक्टिव के कैसे बन सकता है? पता ही नहीं एक्चुअल स्टोरी क्या है, लिंक क्या है, कैसे चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो हाउ टू जज द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन? तो दैट व्हाट अ स्टूडेंट लैक इन इट्स प्रिपरेशन। तो ये था अपने जगह। फाइनली moreover calcitriol synergistically support reabsorption along with calcitonin. तो these are those 5 statements जो आपको याद रखना है। और इसमें कौन किसके सिनर्जिस्टिक है, कौन किसके एंटागोनिस्टिक है। पीटीएच इसका साथ दे देता है, लेकिन ये खुद किसका साथ देता है? टीसीटी। दैट्स द कंक्लूजन। पीटीएच इसका साथ देता है, और ये किसका साथ देता है? टीसीटी। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्टिक। That's the conclusion of calcium homeostasis, bringing 3 metabolic movement of which mineral in the body, within the body, between fluid and matrix and rest of the organs? Calcium. Calcium homeostasis. Clear? तो ब्रेक अब आपका होता है 11:05 पे। 10:35, 10:35 हो रहे हैं मेरे घड़ी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो 11:05 पे क्लास हम फिर रिज्यूम करेंगे, एंड वी विल गो विथ फीमेल गोनाड ओवरी। क्या पढ़ेंगे?
ठीक है ना, विच विल बी कंप्लीटेड इन 1.5 आवर, क्योंकि वो पढ़ाते हुए मैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगा आज।